Honorable Chief Justice of India, Justice B.R. Gawai, Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khanduji, Honorable Judges of the Supreme Court, Justice Ujjal Boyan, Justice Sandeep Mehta, Justice N. Koteshwar Singh, Justice Vijay Vishnoi, my colleague, Minister of State for Law and Justice, Independent Charge, Arjun Ram Meghwal ji, the Chief Justice of Guwahati High Court, Justice Asutosh Kumar ji, the Senior Judge of Guwahati High Court, Michael Zothang Kumar, the Honorable Deputy Chief Minister, the Honorable Speaker, the Law Minister of Arunachal, Justice Rishikesh Roy, former Judge of Supreme Court, all the respected spouses of the Honorable Judges, the Honorable Judges from High Court of Guwahati, especially those who are traveling far away to attend this event, all the judicial officers, the Honorable Ministers, Honorable MP, Honorable MLAs of Arunachal Pradesh, Chief Secretary, DGP, and most importantly, the lawyers, the High Court of Guwahati, Itanagar Bench, Permanent Bench, Bar Association. Bar and bench, you are both two sides of the same coin. We are extra people today, but very happy to see Honorable Chief Justice of India taking time for 2 days to be here in Arunachal Pradesh to inaugurate the beautiful building of the High Court of Guwahati Permanent Bench in Itanagar. As already been explained, lots of efforts have gone to have this beautiful building completed today. Lots of contribution from the state government, the Honorable Chief Minister is here. I am also part of the entire journey and witnessed how state government has contributed in supporting the judicial infrastructure coming up in not only for the High Court building, but for the district courts also. Judicial infrastructure is extremely important. Especially in the lower judiciary, I have seen the requirement is vast. We want not only good courtrooms, not only court buildings, but the facilities for the lawyers. Even some of the lower courts do not have separate sitting room for the lady lawyers, toilets, bathrooms. The basic place where the litigants can come and stay, at least to hold on, because sometimes it takes long time for the matter to be resolved in the court. People have to wait. We have to make justice easy for the common people. I have firmly believed forever that the distance between justice and the common man must be reduced to the maximum possible. If you struggle to secure justice, then I feel it is not truly justice provided. Justice must be at the doorstep of the people. I have repeated many times that justice is delivered not only from the courtrooms, but justice must be delivered beyond the courtrooms. We have to reach out to the people to deliver the justice. Common people expect justice from the honorable judges, from the government, from all the authorities. It is the combined effort which will make life of the common people easy. We have to make every Indian proud
and we can make it only possible if we make their life easy. One thing I would like to share today, our government believes in making everything from ease of living to ease of doing business very simple. मैं इसको हिंदी में कहना चाहता हूं क्योंकि हमारे अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोलचाल भाषा है. लोगों का जिंदगी को आसान करने के लिए हमने कई कानून बनाया भी है और कई कानून खारिज भी किया है. All the redundant laws, obsolete laws have been deleted, which are not required in the statute books. आपको मालूम है, अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने कुछ आपको बताया था, अंग्रेजों का समय से कोई कानून चल रहा था जो आज के समय में संदर्भ में कोई योगदान ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है. 1500 से ज्यादा कानून को हटाया है. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अब तक 1500 से ज्यादा कानून को इसलिए हटाया कि वो कानून आम लोगों का जिंदगी में नुकसान दे रहा था, बर्डन दे रहा था. अननेसेसरी ऐसा प्रोविजन था कानून में जिससे लोगों को परेशानी मिलती थी. बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज प्रोविजंस सरकार आम लोगों के जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. ये एक्सपेक्टेशन है. प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बार ये दोहराया है. द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन शुड बी रिड्यूस टू मैक्सिमम. बिल्कुल जितना हो सके, जहां जरूरत है वहां हम आना चाहिए, जहां जरूरत नहीं लोगों का जिंदगी में हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. कई कानून, आप सोचिए अंग्रेजों का जमाने में ऐसा कानून बना कर रखा था जिसके लिए पुलिस को अननेसेसरी दौड़ा दौड़ी करना पड़ता है, जिसके लिए कोर्ट में बिना मतलब से जाता है. हम तो कोर्ट जाने में बहुत डर लगता है क्योंकि कोर्ट में कब जाता है, जब परेशानी होता है तब तो कोर्ट में जाता है. जब आपका जिंदगी आसान है, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे. अदालत तभी जाता है जब आपको न्याय नहीं मिलता है. तो हम ऐसा प्रावधान करें जी अदालत में कम से कम जाना पड़े. हमारा देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है. इसका मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिला अभी भी. हम चाहते हैं कि ये पेंडेंसी भी कम हो और हम ऐसा व्यवस्था करें जिससे कोर्ट में कम से कम जाना पड़े. अब जजेस लोग, पता है आम आदमी जजेस का जिंदगी बारे में इतना नहीं जानते. कोई लोग तो आसानी से बोल देता है कि जजेस लोग छुट्टियां में जाते हैं, समर वेकेशन जाते हैं. मैंने बहुत करीबी से देखा है एक जज का जिंदगी. सुबह उठ करके दिन का मैटर को पढ़ना, फिर कोर्ट में जाना. एक दिन में 100 केसेस मेंशन होता है. एक जज मिनिमम 50-60 केसेस डील करता है एक दिन में. फिर उसके बाद में रात में जाकर के फिर केस को पढ़ना और फिर अगले दिन फिर सेम दोहराना. एक जज का जिंदगी आसान नहीं होता है. बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि जज अपने जिंदगी कैसे बिताते हैं क्योंकि वो थोड़ा सिक्लूडेड होते हैं. जजेस लोग आमतौर पर मार्केट में घूमते हुए, आम लोगों से मिलते हुए आना जाना कम होता है. तो इसलिए जजेस का जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है. रात को 1-2 बजे तक भी कल का केस पढ़ना पड़ता है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि जजेस को ऊपर में भी इतना प्रेशर क्यों होना चाहिए. कम केसेस होगा तो क्वालिटी जजमेंट होगा. आप सोचिए अगर 60 केसेस एक दिन में एक जज हैंडल करेगा तो कितना मेंटल प्रेशर होगा. ये सारा चीज व्यवस्था पूरा हमारे देश में जो चल रहा, मैं मानता हूं कि जजेस का प्रेशर, लोगों को न्याय जल्दी मिले, ये सब व्यवस्था को देखते हुए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है. मैं जब कानून मंत्री था तो हम लोगों ने लोअर जुडिशरी का कई काम किए. अरुणाचल प्रदेश में भी कई बिल्डिंग्स बने हैं. आज का बिल्डिंग तो अल्टीमेट है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में जस्टिस संदीप मेहता ने अभी जो बताया,
स्टेट गवर्नमेंट का मदद से और हमारे समय में भी काफ़ी पैसे दिए, अभी अर्जुन जी के समय में भी सपोर्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। तो हम चाहते हैं कि बिल्डिंग अच्छा हो और बिल्डिंग के अंदर में जो सुविधा है वो भी ठीक होना चाहिए। ई कोर्ट्स के लिए 7,000 करोड़ मोदी जी का समय में आप सोचिए, जितना आज़ादी से अब तक पैसा जुडिशरी को नहीं मिलता है, एक बार में कैबिनेट ने 7,000 करोड़ अप्रूव किया है ई कोर्ट्स के लिए। और सारा ऑल इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम को चुरुस दुरुस करने के लिए और कई मदद किया है, कई काम कर रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मगर हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट में जब 21 जजेस थे तो हमको भी ऐसा लगा कि संख्या बढ़ाना चाहिए। अब जस्टिस मेहता साहब ने बात रखा है, जस्टिस चीफ जस्टिस साहब से बातचीत करके, लॉ मिनिस्ट्री से बातचीत करके इसका भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जब 2018 तक अरुणाचल प्रदेश से हाई कोर्ट का जज नहीं बना, आप सोच के देखिए, हम इतना लेट से आए हैं। पहली बार 2018 में एक नाम आया अरुणाचल का, पहले बार एक जज हाई कोर्ट का जज बना अरुणाचल प्रदेश से। तो उसके बाद में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हमने बात किया और दिल्ली से हम आया गुवाहाटी में, हमारे चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाई कोर्ट से बातचीत करके 21 से 30 जजेस बनाया। और वैसे तो रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हमने तय किया कि गुवाहाटी असम के लिए 21 जजेस असम के लिए होना चाहिए। उनका पॉपुलेशन लगभग 3.5-4 करोड़ है। और अरुणाचल के लिए, नागालैंड के लिए और मिजोरम के लिए 3 हाईकोर्ट में जजेस होना चाहिए। और हो गया, आज अरुणाचल से 3 जजेस है हाईकोर्ट में, एक जुडिशियल ऑफिसर से आते हैं और 2 बार से आते हैं। भविष्य में इंक्रीज होगा, अच्छी बात है। केसेस का पेंडेंसी के हिसाब से तीनों स्टेट असम को छोड़ के अरुणाचल हाईएस्ट है, सबसे कम मिजोरम का है। जोतन कुमार साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मिजोरम का टोटल केसेस सबसे लोवेस्ट है और अरुणाचल सबसे हाईएस्ट है तीनों बेंच में से। इसलिए अरुणाचल के लिए ज़्यादा हाई कोर्ट जजेस देना ये एक हक बनता है अरुणाचल लोगों के लिए, ये एक एंटाइटलमेंट बनता है मेरे हिसाब से। कुछ चीज़ें हैं मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। लीगल अवेयरनेस अरुणाचल प्रदेश में कम है। 2 कारण है। हमारा यहाँ लेट से जुडिशियल सिस्टम लागू हुआ और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कस्टमरी लॉज के ज़रिए से अपना ज़िंदगी जीते हैं। हमारा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड का पक्ष में है, आप सब जानते हैं। जब देश में एक क्रिमिनल लॉ है तो सिविल लॉ, पर्सनल मैटर में भी एक लॉ होना चाहिए, ये हमारा मत है। लेकिन मैं ये इसलिए आज यहाँ अरुणाचल में बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से इशू बन जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारा सरकार का क्लियर मत है कि हम ट्राइबल एरियाज में आदिवासी के लिए ये हम एप्लीकेबल नहीं बनाएंगे। ये हमने शुरू से कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में होगा, बट इट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरियाज, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। वो हमारा स्पेशल यूनिक हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी है, उसको हम तबाह नहीं करना चाहते हैं। हमारा यूनिक हमारा पहचान है और इस पहचान को मोदी जी का सरकार हमेशा तवज्जो देते हैं कि ट्राइबल राइट्स एंड ट्राइबल आइडेंटिटीज विल नेवर बी डिस्टर्ब्ड। क्योंकि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो मैंने देखा अरुणाचल में कितना मिस इन्फॉर्म्ड मामला बना है। उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में यह प्रोविजन था कि फॉरेनर्स को, जिसको रेफ्यूजी स्टेटस दे करके 2014 से पहले जो भी आया उनको सिटीजनशिप देना है, मगर अरुणाचल के ट्राइबल स्टेट्स में इनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, ये प्रोविजन था। तो अरुणाचल का एक आदमी झंडा उठा करके सपोर्ट करना चाहिए था। उस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो मैंने उस समय भी कहा इतना मिस इन्फॉर्म नहीं होना चाहिए, वो भी हायर इंस्टीट्यूशन में,
कि यहाँ मेरे पास खबर आया कि देयर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इन अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने कहा कि भाई इसको समझाया क्यों नहीं है। ये तो हमारा अरुणाचल का स्टूडेंट्स यूनियन वगैरह ने कितना सालों से ये मुद्दा उठाया कि हमारा ट्राइबल राइट्स को बचाना है और फॉरेनर्स को अरुणाचल में सिटीजनशिप नहीं देना चाहिए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में ये प्रोविजन डाल करके जब एक्ट बनाया तो जितना स्वागत होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में उतना स्वागत नहीं हुआ है। इसका मतलब लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया। अपना राइट्स का बारे में आपको जानकारी नहीं होगा तो फिर आप राइट्स के बारे में फाइट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जुडिशरी के मामले में अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा यहाँ का बार एसोसिएशन को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ कि नालसा के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का साथ तालमेल करके लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारा लॉयर्स बढ़ चढ़ करके आगे लेना चाहिए। स्पेशली जो सीनियर लॉयर्स है, आप सीनियर लॉयर्स है, आपके पास साधन है, आपका इनकम भी हाई है, आप लीड रोल लेना चाहिए और सीनियर जजेस को भी इनवाइट करके उसमें काम करना चाहिए। मैं खुद कितना अटेंड किया है लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का इवेंट में, तो गवर्नमेंट का जितना स्कीम चलता है वो भी उस समय तुरंत हाथों हाथ दे देते हैं, लोग अदालत लगते हैं। मैं तो कश्मीर में मैंने उस दिन भी शेयर किया था, जो 25 लाख एक्सीडेंट केस में उसको फाइन देने वाला को हम लोगों ने लोग अदालत लगा करके 2 लाख में सेटल कर दिया। वो भी उसको कोर्ट जाने का जरूरत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज खुद आकर के उसके गांव में अदालत लगा करके वही न्याय दिया है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डोर स्टेप में जस्टिस पहुंचाना। तो हमारा जितना अरुणाचल प्रदेश का जो लॉयर्स है, आपसे हम बहुत अपेक्षा करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लीगल अवेयरनेस क्रिएट करने में, लोगों को सुविधा पहुंचाने में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैंने ईज ऑफ लिविंग के बारे में जो बताया, उसमें जो बर्डन ऑफ लॉ है, लीगल बर्डन को कम करने के लिए हम लोग का सरकार बहुत काम कर रहे हैं। मैं समय समय में भी शेयर करते रहता हूं। हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो संदीप मेहता साहब ने जो कहा है, अरुणाचल का जोग्राफिकल डिस्टेंस होने के वजह से मैंने सीएम साहब को भी बात किया था एक बार कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है और सेशन कोर्ट है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसका संख्या कैसे बढ़ाया जाए और हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उसको प्रॉपर तरीके से हम कैसे मदद कर सकते हैं, उसका स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और अरुणाचल गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से ये सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा एक चीज़ मैं जल्दी में बोलना चाहता हूँ, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के बारे में हमारे यहाँ थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा, थोड़ा उसमें बल देना पड़ेगा। जब मीडिएशन बिल पास किया तो मैं खुद देख रहा था कि ट्राइबल समाज में तो ये तो हमारा कितने सालों से मीडिएशन करते आए हैं। जब इसको हम लोगों ने कोडिफाई किया तो अरुणाचल जैसे स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मीडिएशन का बहुत बड़ा योगदान होगा जस्टिस दिलाने में। तो अच्छा मीडिएटर्स का यहाँ क्रिएट करना चाहिए, पैनल बनाना चाहिए, हु कैन बी द मीडिएटर्स। तो मीडिएशन बिल तो बहुत ही देश के लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है। आर्बिट्रेशन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कॉमर्शियल मामले में आर्बिट्रेशन को लोग प्रीफर करते हैं। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, आगे जाकर के कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स बहुत आने वाला है। जितना इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उतना ही कॉमर्शियल केसेस आएंगे, कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर आर्बिट्रेशन को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो ट्राइबल हैं और हम आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। हम सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किताब उनके बारे में सबको पढ़ना चाहिए। हमारा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में अंबेडकर जी के बारे में इतना स्टडी लोग करते नहीं है नॉर्मली। महाराष्ट्र तब में चीफ जस्टिस साहब को उस बेल्ट में तो ए टू जेड सबको मालूम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या है। मैं जब लॉ मिनिस्टर बना मुझे बहुत फक्र हुआ
कि इतना साल 71 ईयर्स बाद एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से B.R. अम्बेडकर के बाद लॉ मिनिस्टर बनाया। तो मैं रात भर अम्बेडकर के साहब के बारे में मैं पढ़ा, जितना हो सके मैंने पढ़ा रात भर। अगले दिन मुझे लॉ मिनिस्टर का चार्ज लेना था, तो रात भर जब मैंने पढ़ा तो बहुत चीज़ जो मैं इतने सालों से मैं MP मंत्री के रूप में रहा, मुझे नहीं मालूम था B.R. अम्बेडकर के बारे में। तो जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे, उनके ज़िंदगी में जो घटनाएं हुए हैं आप पढ़ेंगे, आपको एक अलग ताकत मिलता है। मैं मेरा निजी जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं बोलता हूँ, जब अम्बेडकर साहब के बारे में जितना मुझे ज्ञान मिला, मेरा इतना ताकत बढ़ते गया। मैं अपने आप को छोटा स्टेट से आया हूँ, या हमारे यहाँ कम MP है, हम कभी भी अपने आप को हम छोटा नहीं सोचते हैं। और ज़िंदगी में ताकत के साथ अपने न्याय के लिए लड़ना और काम करना, ये एक आम जिंदगी में स्वभाव होना चाहिए। तो ये ताकत मैं आपको बताता हूँ कि अम्बेडकर का जिंदगी को जिसने समझा, वो जिंदगी में जितना भी मुसीबत हो आराम से सामना कर सकते हैं। हमने जो स्ट्रगल किया वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से पढ़ के आया, फिर लंदन से लॉ करके जब आए, एक साथ में कितना PhD मास्टर्स जो एक साथ में उन्होंने किया, और सोशल जस्टिस का स्ट्रगल करके बाद में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना हिंदुस्तान में कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज जब हम न्याय का बात करते हैं और न्याय का बिल्डिंग के बारे में बात करता है, तो उसके अंदर में जो उसका वैल्यू सिस्टम है उस तक हम लोग को जाना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद से आज हम लोग देश में अच्छी तरह से हमारा डेमोक्रेसी चल रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी तरह से गाइड करता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन का गाइड से हम लोग देश का सेवा करते हैं। क्योंकि मैं इस स्टेट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूँ और ये मेरा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, तो मेरा एक दायित्व बनता है जस्टिस B.R. गवई साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आज हमारा बीच पा करके मैं बहुत खुश हूँ। दिल से मैं गवई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल करके इस हाई कोर्ट का बिल्डिंग उद्घाटन के लिए आप आए हैं। साथ में हमारे ऑनरेबल जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहब सब आए हैं। कल हम लोग ने अच्छा से टाइम बिताया, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया। और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और गुवाहाटी हाई कोर्ट के जितने जजेस हैं पूरा आया। और जो ट्रांसफर्ड गुवाहाटी हाई कोर्ट से जो दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर्ड है, वो सबको भी बुलाया। कल मैं देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद सबको मिला। सब मैडम को, स्पाउस को लेके आया, फैमिली को लेके आया। तो हमने पहले कहा अरुणाचल में आना है तो फैमिली लेके आना है, लेकिन अब ईटानगर में ही सब कुछ अरुणाचल यहाँ देखने को नहीं मिलता है। खूबसूरत अरुणाचल और अंदर अंदर में है। वैसे गवाई साहब तो अरुणाचल 3 बार आ चुके हैं। मैं यहाँ के जितना ऑर्गेनाइजर्स है, हमारे जो बार एसोसिएशन है और पूरे टीम, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, इतना शानदार कार्यक्रम जो यहाँ आयोजन किया है, उसके लिए मेरा तरफ से बधाई। और खूबसूरत बिल्डिंग के लिए भी सबको अभिनंदन, बधाई। और भविष्य में इसी कोर्ट से हमारा अरुणाचल के लोगों को न्याय दिलाने में हम सब मिलकर के काम करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।